Hello everyone. Now this is our next session for object class. Okay, that is a math object. So now we are going to see how the object will work in W3 school. When we we start JS tutorial. Okay, there is option that is object file JS object. So you know very well about the object. So as we discussed earlier about the feature of any particular thing, like as a car or any the properties of any particular thing is called object. So there is a another thing in similar way, that is as per our syllabus is string object. What is object? String object, math object, array object. As we have studied about object and string object, now the turn goes for math object. Okay, let's have a look for math object. JS maths. Okay, there are some functions for math as we use, like as square, square root, power, absolute value, and like as. So there are some functions like as math dot round to round some figure. As we round off some figures, like as round of the value of 4.7. Round value will be of 4.7 is equal to, what will be the value of 4.7? Round value of 4.7, 5. And round value for 4.4, 4. 4, because we always consider the nearest value of the floating number. As the number lies between 4 and 5, the nearest value of 4.4 is 4, and for 4.7 the nearest value of 4. 5. That is 5. Okay, so this is our rounding off. Okay, and in similar way, that is there is also a object, that is math dot power. Here you may see the parameters. First parameter is base and second parameter is for the square. Okay, or you may say power. So base 8 and having the power 2, the value will be, फिर से बोलना सर. the the base is 8 and the power is 2, then value will be 8 to the power 64. 2, that is 64, right? And in same way, that is square root, we use the keyword math dot square root and having the parameter. Okay, this is carrying single parameter, so the square root for 64 will be 8, and I am asking asking that square root of 81, what will be the value of square root of 81? 9. Okay, that's good. And if you would like to calculate the value 8 to the power 3, sorry, 6 to the, okay, 6 to the power 3, then base will be 6 and the second parameter will be 3, right? Is that okay Yes, sir. to Sir, calculate? answer will be 216 or not? Yes, sir. 2. 6 to the power 3, 216, Yes. right, exactly. So now you may also hands-on on this, that maths dot absolute value, math dot ceiling value. Okay, now going to discuss about the ceiling value. What is ceiling value? 4.4, the ceiling value for the 4.4 is equal to 5. 5, and floor value for 4.4 is, 4. because the number that is It is. the real number 4, or the number base number is 4, and the base number uh, the number 4.4 lies between the real number line system, lies between 4 and 5.
So 4 is the ceiling value, 4 is the floor value, and 5 is the ceiling value. Okay, every number after point that lies between the two numbers, the first number, lowest number is called your floor, and the first highest number is called ceiling. Okay, as for example, if you are going to count 6.3, then ceiling value for the 6.3 is equal to 7. 7, and the floor value 6. exactly. So now we have some hands on this. Okay, and as we are going to count 6.7, 6.3. Okay, there is a, okay, this is function math dot floor, and we are going to count the value for floor value for 6.3. The answer will be Sir, can you repeat? the floor value. मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Okay, the floor value for 6.3 will be 6. okay. Now your answer is 6. Okay, and so on. Now going to try some another math dot minimum, math dot maximum, and math dot random. Okay, this is a funny function, math dot random. It will generate randomly any number. Okay, so we are going to click every time when we run the same program, uh, show the another number like as this, nothing to do, run again, run. Are you can you notice that the number is changing randomly, right? But we have to fix the range. Now we are going to change the range from 8 to 15. Okay, now going to run. Okay, Yes. it will take any number from the limit. Okay, okay, so now some questions or some method properties. Log value, method constructors. There are some constructors method. Okay, and you may use any of them for as per our need, like as absolute, acos, and all the features are मैं ये स्क्रीन शेयर आप लोगों से कर लेता हूँ. मैं इसका ना एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. This is all about your object, and create the इसमें जैसे मैथ ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें क्रिएट करने में आप लोगों को कोई परेशानी होगी? यूज़ कर सकते हो इनको? आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पर मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू है. आप नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे जो भी लिस्ट होंगी आपकी यहाँ पे डाल सकते हो, उसमें से मिनिमम वैल्यू को काउंट किया जाएगा. एंड इन द सेम वे मैक्सिमम वैल्यू को आप काउंट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मैथ डॉट मैक्सिमम, मैथ डॉट मीन और मैथ डॉट मैक्स फंक्शन. ओके, एंड this is square root function. Now this is square, and as I asked 6 to the power 3, and what will be the value of 6 to the power 3, as one of you said 216 will be the value. प्राची आपने बताया था ना? Yes, sir. Prachi or Sanya. Okay, and in same way, if we are going to count 8 to the power 9, this is the main use of that functions. There is no limit. आप बस एक जो फंक्शन है उसमें आपको क्या करना है, बेस रखना है एंड पावर.
एंड नाउ यू मे यूज़ एनी ऑफ द नंबर। जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपका ठीक है, आपने 6 to the power 3 की वैल्यू जस्ट सेकेंड आप लोगों ने आपकी मेमोरी ने रिकॉल कर लिया कि हाँ ये वैल्यू होती है, दैट्स ओके। बट अगर किसी से पूछे कि 8 to the power 9 व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 8 to the power 9, हाउ मच टाइम विल यू टेक, इट विल मे डिफरेंट फ्रॉम योर दैट वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं 6 to the power 3 तो आप जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। अगर 8 to the power 9 पूछूं तो उसमें आपको टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, है ना। but by the help of this function we may calculate the value in same time frame, right। इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना। नो सर। दैट्स वाई हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर मैथ्स फंक्शन एंड यू मे ट्राई फॉर दैट। तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग पावर ट्राई करके देखेंगे एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, that is sqrt, this is sorry math.sqrt, and now square root of 81, what will the value, that is नहीं, is that okay। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 82, ठीक है, इज इट ओके ना। क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट तो हमें वो एक किसी स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 81 लिया, 81 था 9 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या किया मैंने 82 का ले लिया ताकि आपको यहाँ पर डेसिमल वैल्यू भी देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 81 काउंट करते हैं तो फिर नेक्स्ट नंबर हमारा स्क्वायर में क्या जाता है 100, दैट इज स्क्वायर ऑफ 10, नहीं। यस सर। तो 81 और 100 के बीच में भी तो कोई ऐसा फिगर होगा जो कि हमारा किसी का स्क्वायर रूट होगा, नहीं होगा। 9 और सर वो प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होगा। हाँ प्रॉपर, हाँ वो प्रॉपर स्क्वायर रूट, दैट मीन्स प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होगा बट फ्लोटिंग नंबर तो होगा। सो आई ट्राइड हियर फॉर 82, नहीं 81 में तो हमारा जो एक कंप्लीट नंबर था वो हुआ, लेकिन 82 के लिए क्या हुआ, फ्लोटिंग नंबर हुआ, है ना। सो आई यूज्ड दैट, इज दैट ओके। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर कुछ और फंक्शन है, अरे ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट वी आर गोइंग टू सी आल्सो, दैट इज अरे। देयर आर सम फंक्शंस, अरे मेथड, सॉर्ट, इटरेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा अरे भी ट्राई करते हैं। अरे पे क्या होता है, जैसे आप लोगों को पिछले दिन हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, जब अरे का फंक्शन बनता है दैट इज़ वेरिएबल एंड योर रेलिवेंट ऑब्जेक्ट नेम एंड all the features, all the you may say all the features or all the particulars about that। जैसे यहाँ पे कार्स के डिज़ाइन है, लाइक एस साब, वोल्वो, BMW, एक लिस्ट हमने बना ली, एक लिस्ट बना ली जिसमें कार के मॉडल्स होंगे या कार की कंपनियाँ होंगी, है ना। तो हमारा लिस्ट ऑफ अरे, जैसा आप लोगों को पता है, तो अरे का क्या डेफिनेशन होता है, अरे का डेफिनेशन क्या होता है, अरे के सर डेफिनेशन तो नहीं है। हाँ, array is a special variable which can hold more than one value at a time। वेरी स्मार्ट ना, स्क्रीन नजर आ रही है ना। सर तो क्या पढ़ा है। ओके, दैट्स ओके। तो ऐसा है कि अरे में हम सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को, एक सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था हमारा कार में सिमिलर टाइप के डेटा को हमने होल्ड कराया एंड बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक ये फॉर्म था, एक सेम ऐसा फॉर्म था, और ये सभी एरे को डिफाइन करने के लिए होता है। उसमें सबसे पहली बात होती है कि वेरिएबल डिफाइन करना होता है एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं एंड यहाँ पे एरे को डिफाइन किया जाता है। अरे को डिफाइन करने का ये मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू रिजर्व द स्पेस इन मेमोरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कितनी तक जाएगी हमारी, इंडेक्स वैल्यू कितनी तक जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारे
कितने हैं ऑब्जेक्ट, कितने हैं? 3 है ना, 3 है ना। तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? नंबर ऑफ 0 से सर तो 2 हो जाएंगे इंडेक्स वैल्यू। 0 से 2 तक। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पे? तो 3। 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। एरे क्रिएट करके कितनी उसमें इंडेक्स वैल्यू कितनी तक लेनी पड़ेगी हमें? इंडेक्स वैल्यू हमारी 2 तक रहेगी, सर 2 और लेंगे। 0 to 2। और हमारी जो हमारे पर्टिकुलर्स होंगे वो 3, नंबर ऑफ आइटम्स 3 होंगे। ठीक है। तो जब भी ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, एरे में सबसे बड़ी बात ये होती है, नंबर ऑफ आइटम्स इज ऑलवेज 1 मोर देन द इंडेक्स वैल्यू, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू नहीं। जो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू रहेगा, नंबर ऑफ आइटम उससे एक ज़्यादा रहेगा। जैसे नंबर ऑफ आइटम हमारे पास हो जाएंगे 10, तो इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 9। एग्जैक्टली, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अरे को डिफाइन करते हैं, पिछली क्लास में भी आप लोगों ने देखा था। और जैसे यहाँ पे आपको मैं ये पूछूं कि यहाँ पर अगर गुड मैं, आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत अर्ली। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपको डिफाइन करने बोलूँ वेरिएबल कार, यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू डाल दूँ, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे डाल के आपको बोलूँ कि कार्स में, कार के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, कार ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पर्टिकुलर्स हैं, तो उसमें सेकेंड नंबर अरे सेकेंड नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? सेकेंड नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर? यहाँ पर सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी? सर वॉल्वो। BMW। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लो, वॉल्वो आएगी या BMW आएगी? इंडेक्स नंबर सेकेंड, इंडेक्स नंबर 2। सर इंडेक्स नंबर 2 सर BMW आएगा। ठीक है, BMW। अच्छा, हो गया करेक्शन, चलो ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा आपका BMW। ठीक है। तो सेम वे में हम डिफाइन करते हैं इसको। और यहाँ पे एक ये भी तरीका है आपका ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का। ठीक है। अब हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बुक के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस क्लास 5 मिनट में ओवर कर लूँगा। दैट इज़ 91, 98। ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अरे, नहीं? ये आपको देख के लग रहा है कि ये अरे का एग्जांपल है? Are you सर getting? मुझे दिख ही नहीं रहा। मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? आ रही है बट क्लियर नहीं है। ओके ओके ओके। यहाँ पर फ्रूट्स के नेम है एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे एक सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके क्या किया गया है, किसी लिस्ट ऑफ अरे को यहाँ पर सॉर्ट किया गया। ओके, इवेंट हैंडलिंग के बारे में ये है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट सेशन पे आ चुके हैं। तो हाँ, ओके, दिस इज़ योर अरे। अभी कोई क्लास वगैरह तो नहीं है आप लोगों की? नो सर अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन 2 बजे है इंग्लिश की। अच्छा, 2 बजे है ना, तो 5 मिनट टाइम तो दे ही अरे सकते तो हो। मैंने 5 मिनट टाइम नहीं दे सकते हो? सर ओनली 5 मिनट। सर तभी तो कहा मैंने कि अभी नहीं है। अच्छा, मुझे पता है आप सर ये वाला टॉपिक खत्म करवा के ही जाओगे। मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ कि बताओ। सर आप ये वाला टॉपिक खत्म करवाओगे ना इसलिए। नहीं, इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बस वो पेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। ओके।
स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपका हो चुका है। स्ट्रिंग में आपने देखा था कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे पता करते हैं, स्ट्रिंग लेंथ में आपने यहाँ पे देख लिया था। एंड जो हमारा नेक्स्ट था, ठीक है, ठीक है, डॉट, ओके, प्रोग्राम टू सर्च फॉर ए टेक्स्ट इन स्ट्रिंग एंड रिटर्न द टेक्स्ट इफ फाउंड यूजिंग मैच। जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे ना कंट्रोल फाइंड करने के लिए किसी को, तो यहाँ पे आप यहाँ ये कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिंग डॉट मैच। अब क्या होता है, मान लो कि मैंने पूरे एक डॉक्यूमेंट में रवि नाम कितनी जगह लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली रवि नाम लिखा हुआ है। अब हो सकता है उसमें रवि कैपिटल में रवि लिखा हो, स्मॉल में लिखा हो, सारे लेटर कैपिटल हो, स्मॉल हो। तो यहाँ क्या करते हैं, तो मैं स्ट्रिंग को मैच कराते हैं एंड इस हिसाब से ये मैच करके उसके बाद आफ्टर देन आपको वो फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैच ये आपका एक ऑब्जेक्ट था। एंड आई थिंक नाउ दिस इज फॉर मैथ ऑब्जेक्ट कैरेक्टर, दिस इज़ मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ में आपको देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग जानकारी तो ले रहे हैं ज़्यादा, बट एक सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना है हमें। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एब्सोल्यूट, लॉग, पावर, रैंडम, राउंड, स्क्वायर रूट, ये सारे फंक्शंस के बारे में। जैसे राउंड, अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। बाहर से आप चाहे जितना भी पढ़ लो, कोई अगर आपने कोई नॉलेज गेन कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दैट विल नेवर हार्म यू, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर आपने ज़्यादा पढ़ ली तो कोई थोड़े ऐसा है कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा आपको, है ना। सो यहाँ राउंड मेथड यूज़ किया गया है राउंड फंक्शन में, जो आप लोगों ने देखा अभी राउंड फंक्शन में। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ रैंडम फंक्शन, जो हम लोगों ने अभी हैंड्स ऑन किया। रैंडम फंक्शन पे किया था ना, रैंडम फंक्शन पे किया था हैंड्स ऑन। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। तो हम लोगों ने अभी रैंडम फंक्शन पे हैंड्स ऑन करके देखा था कैसे कैसे Yes, वर्क sir. कर रहा है ये, कि रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा था, दो नंबर के बीच का रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा था। एंड देखो सेम एग्जांपल शायद मुझे लग रहा है, 0 और 1 के बीच का ही रैंडम डिस्प्ले नंबर। ओके, सो अब मैक्सिमम फंक्शन ये भी यूज़ कर लिया अभी आप लोगों ने, मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, ठीक है। इसका सिंटैक्स हमेशा याद रखना, सिंटैक्स हमारा ये रहेगा मैथ डॉट मिनिमम एंड फिर यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं, चाहे 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, 8 नंबर हो, यहाँ पे लिख देना है एंड आउटपुट विल बी हियर। सो ठीक है, अरे ऑब्जेक्ट में हमारा ये था। ओके, दिस वन इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। अरे ऑब्जेक्ट में आपका देखिए एक अरे क्रिएट किया गया। दिस इज़ योर सिंटैक्स HTML, जो आप लोग आज तक करते आ रहे हो, HTML बॉडी नाउ स्क्रिप्ट, चूँकि ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। वेरिएबल आई लिया गया, वेरिएबल कौन सा लिया गया, आई। अब जो यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, वेरिएबल फ्रूट्स लिया, न्यू एरे। यहाँ पे एरे डिफाइन करने के डिफरेंट वे भी हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा था, 4 से 5 तरीके हैं जो आप उस तरीके से आपको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया गया, इंडेक्स वैल्यू 0 पे क्या है एप्पल, इंडेक्स वैल्यू 1 पे बनाना, 2 पे ऑरेंज। ओके, अब हमें क्या करना है, एक लूप चलानी है। लूप जो आप लोगों ने इटरेशन जिसको बोलते हैं, इटरेशन में फॉर लूप है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है और आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, फ्रूट डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। यहाँ देखिए 0 1 2। ओके, लूप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ इस चीज़ को आप याद रखिए कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, एक चीज़ ये, अरे को डिफाइन कैसे करना है, एक चीज़ ये, और उसके बाद अगर लूप की ज़रूरत है तो लूप आप लोगों ने पहले से सीखा है कि जैसे स्विच केस है, फिर आप लोग फॉर लूप चलाते हो, डू वाइल है, वाइल लूप है, कोई भी सभी लूप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा होगा। अगर 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको 5 मार्क आपको मिलेंगे, बिल्कुल एक भी नंबर आपका नहीं कटना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ और भी स्पेशल फंक्शंस हैं तो उसके बारे में, जैसे हम लोग ये बटन बनाते हैं तो बटन के बारे में बात करते हैं। ओके, सो नाउ दिस क्लास इज सभी बात करेंगे बटन के बारे में भी।
नहीं, आज की क्लास में पूरी बात सुन ले आज की प्राची, पूरी आज की बात सुन क्लास ले के फिर लिए इतना ही, क्लास ठीक ओवर। है।